Hello. Yes, we can start. Okay, so welcome everyone to the fourth webinar of IWHP. As usual, we are going to start on time. Today, our esteemed speaker is Dr. Neelam Avtar Singh, and she is going to speak about wheat allergies and immune disorder and share some of her cured cases with us. I am Dr. Alka Parvate from Pune, and as usual, I am the moderator today also. Before we start, I will tell you a bit about her in short. Now, Dr. Neelam Avtar Singh is a special homeopath for us, and you all know the reason why. Because she is a specialist in understanding and explaining rubrics. She has been explaining rubrics from 10 years and she continuously posts one rubric daily at 8 a.m. in the morning, which is really very great. She has her own YouTube channel known as Homeopathic Healings, where she posts videos of homeopathy. And nowadays, her most popular series is the 100 Days, 100 Cases, which she has been posting in our group also. She has her own website called www.homeohealings.com. Now, to tell you a bit about her journey as a homeopath, she has graduated from Homeopathic Medical College, Chandigarh in 1985 and did a graded degree in 1993 and conferred with MD in 2001. She has written 3 books: Homeopathy and Mind, co authored by Dr. A.S. Mann and Dr. Bhupinder Singh, Marvelous Sapphire with 51 case studies, and Repertory Guide to Rubrics. She has been the editor of the Homeopathic Community Journal for 20 years from 1995 to 2015 and the chief editor of the DARE Journal from 4 years too. She has written numerous articles for newspapers, journals, magazines about homeopathy, and she has also done charitable work. She has run few charitable dispensaries with nominal charges. Dr. Neelam Avtar Singh is also popular for conducting special lectures at places like Lucknow, Patna, Ahmedabad, Rohtak, and many places in Punjab. And she has also delivered lectures in US too. So over to you, Dr. Neelam. We are eager to learn from you. Everyone is really eager. More and more people joining in right now. Please begin. Hello everyone. मुझे एक्चुअली आपकी आवाज बहुत कम सुन रही थी, सो आई वाज डूइंग लाइक दिस कि थोड़ा पता नहीं कैसे. Was it a little low? नहीं, वो डॉक्टर साहब के मोबाइल पे तो बहुत ऊंची थी, पता नहीं. आई थिंक इसमें कुछ होगा. नो प्रॉब्लम. सो सबसे पहले तो आपको हेलीमैन वीक की कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. जो आपने ये एक फोरम बनाया है फॉर वेमेन और उनकी ही आप प्रोग्रेस एंड उनके बारे में ही लिखते हो, देखते हो, सोचते हो, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हो. दिस इज ऑसम. अलका जी एंड आई डोंट नो द नेम, एक डॉक्टर हमारे और Rachna है, ji. वैशाली आई थिंक जी. Dr. Rachna. सो and यू आर Dr. डूइंग अ ग्रेट जॉब. Thank you so much, doctor. आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज ऑन व्हीट एलर्जी या ग्लूटेन एलर्जी या सीलियक डिजीज, ग्लूटेन सेंसिटिविटी. बेसिकली ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. मेरे बहुत सारे लेक्चर्स इस पे हो चुके हैं क्योंकि मैं 2006 से इन लोगों को जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है उनको मैंने ठीक करना स्टार्ट किया. माय फर्स्ट केस दैट केम वाज इट वाज इन 2006. तो पहले थोड़ा सा हम इंट्रो करते हैं कि ये एलर्जीज है क्या. बहुत सारे लोग आज भी जानते हैं कि व्हीट एलर्जी हो, ग्लूटेन एलर्जी हो, सीलिक डिजीज हो, इसका कोई इलाज नहीं है. क्योंकि मुझे लगता है कि 95% लोग एलोपैथी यूज करते हैं और एलोपैथी में इसका कोई भी इलाज नहीं है. चाहे हम व्हीट एलर्जी की बात करें, चाहे सीलियक डिजीज की, चाहे ग्लूटेन एलर्जी की, चाहे ग्लूटेन सेंसिटिविटी,
हमारे लिए सभी टर्म्स एक जैसी है, क्योंकि हम ऐसा किसी बीमारी को नहीं देखते। हमारे लिए सिम्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सभी चीजों में, चाहे वो व्हीट एलर्जी है, चाहे ग्लूटेन एलर्जी है या सीलिएक डिजीज है, हमारे लिए सिर्फ एक बात है कि व्हीट खाता है कोई भी पेशेंट तो उसकी एग्रीवेशन होती है, उससे बहुत सारे सिम्टम्स पैदा होते हैं। जो व्हीट एलर्जी के केसेस होते हैं उसमें अकेला व्हीट ऐसा होता है, गेहूं ऐसा होता है जो पेशेंट नहीं ले सकता। लेकिन अगर ग्लूटेन एलर्जी की बात करते हैं तो हर वो चीज जिसमें ग्लूटेन प्रोटीन होती है, उसमें बार्ले भी आ जाता है, ओट्स आ जाती है, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो पेशेंट्स नहीं ले सकते। और सीलियक डिजीज एज सच, और अगर हम इस वर्ल्ड को एज सच देखें, हमारे लिए इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये एक जेनेटिक कंडीशन है। होता क्या है जब कोई पेशेंट व्हीट खाता है, बेसिकली ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी है, एक प्रॉब्लम है। जब भी कोई सेंसिटिव बंदा या एलर्जिक लगा लो, वो बंदा जब भी व्हीट खाता है तो उसका स्टमक एंड उसका स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम एक्टिवेट होती है कि कोई वायरस ने अटैक किया या किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया या किसी ने भी इन्वेड किया उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इमीडिएटली इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसके एक्टिवेट होते ही वो इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे जो विलाए होते हैं, हेरी प्रोजेक्शंस होते हैं, वो अपने ही हेरी प्रोजेक्शंस खाना शुरू कर देता है। और जब इन लोगों की बायोप्सी होती है तो उसमें फ्लैट विलाए आते हैं, बिल्कुल एट्रोफिड विलाए आते हैं कि उनमें विलाए है ही नहीं। तो इस तरह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज पैदा करती है, लेकिन उसको नहीं पता कि व्हीट हमारे लिए ठीक है नहीं है। वो तो एक्टिवेट हो गई, उसने तो अपना काम कर दिया, एंटीबॉडीज पैदा कर दिए और अपनी ही विलाय को खा लिया। अब बात करते हैं कि इसका कॉज क्या है। कॉज एज सच आप कहीं भी गूगल पे सर्च करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा कि क्या कॉज है, पता ही नहीं क्या कॉज है। बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, दिस इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून, ये मुझे लगता है कि कोई भी बीमारी इसका असली कारण तो पता ही नहीं होता। गूगल पे किसी का भी सर्च कर लो, कोई बंदा कहता है जी मुझे व्हीट एलर्जी क्यों होगी, या मुझे डायबिटीज क्यों हो गई, या मुझे ब्लड प्रेशर क्यों हो गया, हाइपरटेंशन क्यों हो गई। नो आंसर, कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं पता होता कि किसी को क्यों हो गया। अब हो गया है तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। सो अगर हम इसके कॉज की ऐसा बात करें, कुछ नहीं पता, लेकिन पिछले 18 सालों से जो मुझे लगता है क्या रीजन हो सकता है, द रीजन इज कि हमारी धरती, हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी हवा, हर चीज केमिकल से भर गई। इतने ज्यादा केमिकल्स हमारी जमीन में चले गए, उनका इफेक्ट हम पे ही होना है ना। मुझे तो यही लगता है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि इतने पेस्टिसाइड, एक पेस्टिसाइड गवर्नमेंट 20% अलाउ करती है कि आप 20% पेस्टिसाइड डाल सकते हैं। वो बंदा फार्मर जो है वो दुकान पे जाता है, वो कहता है जी 20% से काम नहीं चलेगा, 40% लो। वो 40% बेच देता है जो शॉप वाला है। तो उसको लगता है कि 40% से क्या होगा, थोड़ा और डाल देते हैं। ये करते करते 80% तक पेस्टिसाइड चला जाता है। जो 20 रिकमेंडेड है वो 80% तक चला जाता है। तो हमारी जमीन क्या करेगी। वही सब चीजें जब हम खाते हैं तो हमें ये नई नई बीमारियां होती हैं। ये लोग क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, ये कोई भी व्हीट से बनी, गेहूं से बनी कोई भी चीज नहीं खा सकते। चाहे वो बिस्किट है, चाहे वो मैगी है, कुछ भी नहीं खा सकते। क्या खा सकते हैं, आजकल जो ग्राम सीड है, काले चने हैं, उनका आटा मिलता है। ये राइस खा सकते हैं, ये मेज मक्की का आटा खा सकते हैं, ये बेसन खा सकते हैं, ये मिलेट्स खा सकते हैं। सारे मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो ये सब चीजें ये लोग खा सकते हैं, लेकिन व्हीट
और व्हीट से बनी हुई गेहूं और गेहूं से बनी कोई भी चीज नहीं ले सकते। इससे होता क्या है, कौन कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जो गेहूं खाने से पैदा होते हैं? वैसे मुझे लगता है कि मेरे क्लिनिक में मैंने 70-80% तो बच्चे ही आते हैं। मुझे लगता है कि 8वां-10वां बच्चा जो पैदा होता है उसको व्हीट एलर्जी होती है। जब मैंने पहली बार 2006 में किसी का केस ठीक किया था, तो जो उन्होंने आके जब मुझे बताया कि मुझे व्हीट एलर्जी है, आई वाज एस्टोनिश्ड। व्हीट एलर्जी कैसे हो सकती है? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। और तब टेस्ट भी नहीं हुआ करते थे। हमारे यहाँ पीजीआई है चंडीगढ़ में, बस वहां पे एक टेस्ट होता था और उसकी जो रीडिंग होती थी मोर देन 100 हुआ करती थी। बस 100 है, 100 तक वो उनकी किट में पता चलता था। उसके बाद जितना भी है 200, 400, 600, 800 वो नहीं पता चलता था। ये बहुत शुरू की बात है, 18 साल पुरानी बातें हैं। बहुत कम लोग होते थे जो इस प्रॉब्लम से सफर करते थे। आज जिससे भी बात कर लो वो कहते हैं हाँ जी हमारे फलाने को भी व्हीट एलर्जी है, हमारे उसको भी है, हमारे उसको भी है, हमारे उसको भी है। बहुत सारे लोगों को व्हीट एलर्जी आजकल होने लगी है। बच्चों को, बच्चे तो बहुत ही ज्यादा पीड़ित है, बड़ों को भी। इससे सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? लूज मोशन लगने, बच्चों में खास करके, बड़ों में भी लूज मोशन लगने, पेट में दर्द होना और एचबी कम हो जाना। ये इसका एक कंफर्मेटरी एक चीज है जिससे पता चलता है कि अगर बच्चे के पेट में दर्द है, उसका एचबी 5 या 6 रह गया, तो पक्का होगा कि उसको व्हीट एलर्जी होगी। तो ये टेस्ट हम सबसे पहले इसलिए करवाते हैं। वेट लॉस हो जाता है, बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, छोटे छोटे बिल्कुल छोटी सी हाइट रह जाती है, हर वक्त थके हारे रहना, पेट में दर्द होना, मुंह में छाले हो जाने, स्किन प्रॉब्लम हो जानी, उल्टियां लग जानी। और जब भी ऐसा होता है तो वो अड़ोस पड़ोस में किसी को, जो भी उनके लोकल डॉक्टर्स है उसको दिखाते हैं, 2-4 दिन दवाई खाई, बच्चा थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। और 15-20 दिन के बाद फिर से दोबारा होता है, फिर वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। सो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन आजकल ये इतना कॉमन हो गया कि जब भी ये बच्चे या ये पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले टीटीजी करवाते हैं। इसमें 2 टेस्ट होते हैं, टीटीजी एंड आईजीके। दोनों ही टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज टेस्ट है, जिससे कंफर्म होता है कि ये बच्चे को या बड़े को किसी को भी एलर्जी है। लेकिन डॉक्टर्स फिर भी उनकी बायोप्सी करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, बायोप्सी करते हैं। उसमें कंफर्म होता है कि विलायें जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलायें वो खत्म हो गए, फ्लैट हो गए, बिल्कुल फ्लैट। और उसके होने से क्या होता है, जो इन्होंने विलायें ने एब्जॉर्ब करना था आयरन एंड मिनरल्स, वो ये बंद कर देता है। यही कारण है कि इनका एचबी बहुत लो होता है। ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका एचबी सिर्फ 4 रह जाता है, उनको समझ ही नहीं आती कि हुआ क्या है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और वो आम लोगों को प्रेरित भी नहीं करते कि आप होम्योपैथी लो। मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं, जी हमें तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ये क्या आप होम्योपैथी के पीछे लगे हुए हो, इससे इलाज होता है क्या? एलोपैथी में तो इलाज है नहीं, तो होम्योपैथी में कैसे होगा? बट पिछले 18 सालों में मुझे नहीं लगता कि मैंने कितने कितने ज्यादा पेशेंट्स को ठीक किया होगा, मुझे याद नहीं है। हंड्रेड्स पेशेंट्स को ठीक किया होगा। ये इलाज लंबा है, इसको टाइम लगता है क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ये नहीं कि 2 बार दवाई ली और ठीक हो गए, साल लगता है, 2 साल लगते हैं, 3-3 साल भी लगते हैं। लेकिन जिसने ढंग से दवाई ले ली वो पक्का है, श्योर शॉट है कि ठीक होगा ही होगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो ठीक ना हो। और आई एम प्राउड ऑफ वन थिंग कि मैं आई फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, सिंपल मेडिसिन, सिंगल डोज एंड मिनिमम
डोज। ये नहीं है कि मैंने रेक वेक का कॉम्बिनेशन भी यूज कर लिया जिसमें 15 दवाइयां हैं, मैंने किसी और का भी कर लिया, मैंने 10 दवाइयां और कर ली। नो, नॉट एट ऑल। मैं एक दवाई की सिलेक्शन करती हूँ और उस दवाई को भी एक, जो अभी मैं बताऊंगी कि एक पैटर्न है जिस तरीके से मैं यूज करती हूँ। और पता नहीं कितने पेशेंट्स ठीक किए होंगे, बिल्कुल नहीं पता। अभी भी मेरे पास मुझे लगता है कि 100 के करीब पेशेंट चल रहे होंगे। हालांकि बहुत सारे 50% तक पेशेंट तो 2 महीने की दवाई लेके, 3 महीने की दवाई लेके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इतना लंबा है, पता नहीं ले ठीक होएगा कि नहीं होएगा। सो होम्योपैथी में अगर आपके पास भी कोई पेशेंट आता है तो डेफिनेटली उस पेशेंट को दवाई दीजिए, एक सिंगल मेडिसिन की सिलेक्शन कीजिए। आई फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी एंड डॉक्टर एम.एल. सहगल की एक देन है जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया कि हम माइंड को फॉलो करें, क्योंकि माइंड सेंटर है, और माइंड को फॉलो करें। हमने 1993 में पहली बार उनका एक लेक्चर अटेंड किया था। तब से आज तक तकरीबन 32 इयर्स हो गए। तब से आज तक यही सिस्टम फॉलो करते हैं और हमेशा रिजल्ट मिलते ही है। मैं ये नहीं कहती कि बाकी बाकी लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन ये सिस्टम बहुत इजी है मुझे लगता है, क्योंकि जब हम पेशेंट से उसके मन की बात करते हैं तो आधा पेशेंट तो मन की बातें करके ही ठीक हो जाता है। तो अभी हम कुछ केसेस की बात करेंगे। पहले मैं वही एक केस बताऊंगी जो मेरी जिंदगी का सबसे पहला केस था। ये एक फीमेल है। ये कब की बात है? अबाउट जनवरी 2006। तब ये फीमेल, शी वाज 23 इयर्स ओल्ड, तो मेरे पास आई कि मुझे ग्लूटेन एलर्जी है। उन्होंने मुझे पीजीआई की एक रिपोर्ट दिखाई। मैंने तो पहली बार देखी थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, वीट एलर्जी कैसे हो सकती है, वो तो हम हर रोज खाते हैं। वो कहती नहीं जी, वीट एलर्जी हुई है। और दिल्ली में भी कहीं दिखाया था। पहले तो किसी को पता नहीं चला, फिर जब पीजीआई में चेकअप करवाया तो उनको पता चला कि ये इनको उसके मोर देन 100 था। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहते मुझे वीट सूट नहीं करता। मैंने कहा क्या होता है उसके खाने से? वो कहता मेरा पेट दर्द होने लग जाता है, उल्टी आने को दिल करता है, वॉमिटिंग आ भी जाती है और साथ में लूज मोशंस लगते। तो वो कहते कि एक्चुअली मुझे शुरू से ही, जब मैं छोटी बच्ची थी, मुझे तभी से ये प्रॉब्लम थी, लेकिन कभी पता ही नहीं चला कि प्रॉब्लम क्या है। तो कभी भी आस पड़ोस वाले डॉक्टर से ले आते थे थोड़ी 2-3 दिन की, 4 दिन की दवाई, थोड़ा फर्क पड़ जाता था। लेकिन जब बहुत देर तक ठीक नहीं हुई तो देन आई वेंट टू पीजीआई चंडीगढ़। तो वहां पे उन्होंने, चंडीगढ़ में जो पीजीआई वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वो वहां पर टेस्ट पे टेस्ट करते रहते हैं फॉर मेनी मेनी डेज। जब तक उनको प्रॉपर पता नहीं लगता कि क्या बीमारी है तब तक वो दवाई नहीं स्टार्ट करते। तो इन्होंने बोला कि पीजीआई से डिटेक्ट हुआ और मैंने 7 साल पीजीआई की दवाई खाई। मैंने कहा 7 साल दवाई तो कोई थी ही नहीं, तो खाया क्या? कहते बस कैल्शियम एंड विटामिन, बस यही कुछ देते थे। और बाद में अब उन्होंने मना कर दिया कि इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप घर जाओ और सारी उम्र के लिए आपका वीट बनता है, आप गेहूं नहीं खा सकते। तो वो बड़े हैरान। फिर वो पटियाला में आए। पटियाला आकर उन्होंने एक हमारे यहाँ के बहुत स्पेशलिस्ट गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है, तो उनको दिखाया और वहां भी 3 इयर्स उन्होंने मेडिसिन ली। मैंने कहा कमाल है, कितनी देर आप दवाई लेते रहे और पता था कि दवाई नहीं है? कहते बस उन्होंने भी ऐसे ही कोई विटामिन दे दिए, कोई कैल्शियम दे दिए, कुछ इस तरह का चलता था। तो मैंने कहा अब होम्योपैथी का मन में क्यों आया? कहते मुझे किसी ने बताया कि आपके बारे में, तो मैंने कहा कि मैं लेके देखती हूँ। तो मैंने कहा अब अपने मन के बारे में बताइए कि किस तरह की सोच है, क्या सोचते हो बीमारी के बारे में? तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ इस बात के लिए कि इतने साल, 7 साल वो खाई थी, 10 साल मैंने दवाई खाई और कोई फर्क नहीं पड़ा।
और अभी तो मेरा मन बिल्कुल टूट गया और मुझे नहीं लगता कि इसका इलाज होगा। मुझे तो बस एक ही चिंता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा? अभी मैं 23 साल की हो गई हूँ और शादी की एज है। कौन मेरे साथ शादी करेगा? मेरा बनेगा क्या? और डॉक्टर्स ने तो एक बात बोल दी कि वीट बंद कर दो और वीट तो चलो बंद कर दिया, दूसरे के घर शादी करके मैं जाऊँगी, तो वहाँ वो मुझे एक्सेप्ट कैसे करेंगे कि इसको तो वीट एलर्जी है। मैंने कहा जी अपनी नेचर के बारे में बताइए। कहते बहुत मूड अपसेट रहता है, बार-बार सिर दर्द होता है, पर चिंता तो एक ही है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा? वीट एलर्जी के साथ मेरे साथ शादी कौन करेगा? बार-बार उन्होंने यही बात बताई। मेरा चाइल्डहुड कहते बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि कोई मेरे साथ बोले ना, मुझे किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं है। कोई मुझे प्यार से भी घर वाले बोलते हैं ना कुछ तो मुझे तब भी गुस्सा आता है। थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्ट कर दे किसी बात पे, थोड़ा-सा कोई मेरे ऊँच-नीच हो जाए, तो मुझे गुस्सा आता है। और मैं बहुत ज़्यादा अपने घर को साफ-सुथरा रखती हूँ, अपना रूम बहुत नीट रखती हूँ। मुझे सिम्पथी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। बस एक ही बात है कि मेरा फ्यूचर की मुझे बहुत चिंता रहती है। तो मैंने पूछा कि और बताइए, कहते कि मैं कंजूस बहुत हूँ। अपने आप ही उन्होंने बताया, ऐसे मैंने पूछा नहीं क्योंकि इसका पैसे के साथ कुछ लेना-देना था नहीं। कहते जी मैं बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्चती और मैं जोड़ती रहती एंड मैं अपने फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि हर वक़्त वो कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाते ही रहते हैं। आज के टाइम में और शायद आज के 20-25 साल, 30 साल पहले के टाइम में ज़मीन-आसमान का फ़र्क आ गया है। पहले बच्चों के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती थी। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे। लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है, अब तो बच्चों की ही चलती है। तो ये उसी टाइम की ये वाली गर्ल है। तो उसके मम्मा भी साथ में बैठे थे। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आई आल्सो वांट टू से समथिंग। मैंने कहा जी बताओ। कहते शायद आपको कुछ मदद मिले। मैंने कहा जी बताओ। कहते जब मैं प्रेग्नेंट थी, ये होने वाली थी बेटी, तो मेरे हस्बैंड को किसी मर्डर के केस में इनको जेल हो गई। ही रिमेन्ड इन जेल फॉर 3 इयर्स। उस बीच में ये पैदा हुई। मैं तो इतनी ज़्यादा मदर बोल रही है, मदर बता रहे हैं, इसको लड़की ने नहीं बोला। वो कहते मैं तो इतनी टेंस थी कि मैं पूरा दिन रोती रहती थी। मैंने तो एक बार कुछ गोलियाँ भी खा ली थी कि अबॉर्ट ही करवा दूँ इसको, लेकिन हुआ नहीं। और हमेशा मुझे यही लगता था कि घर वाले मुझे किस तरह से देखते हैं, सोसाइटी मुझे किस तरह से देखती है कि मेरे हस्बैंड को मर्डर के केस में जेल भेज दिया गया। हमेशा यही मुझे लगता रहता था। हालाँकि मेरे घर वाले मेरे साथ थे, परंतु मेरे अंदर यही रहता था कि सोसाइटी मुझे कैसे देखती है? लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? तो ये मैंने सुन लिया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं समझ आई, मैंने कहा कोई बात नहीं। जैसे-जैसे कि हम सिंपल मेरे तो रूब्रिक्स होते हैं, सिंपल बातें, सिंपल रूब्रिक्स। मैंने 5-6 रूब्रिक्स लिए। जैसे पहला मैंने लिया डिस्करेज्ड क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मैं मुझ में हौसला ही नहीं है कि मैं दवाई खाऊँ। डिस्करेज्ड, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, एंग्ज़ायटी अबाउट फ्यूचर ये बहुत ही प्रोमिनेंट था। कंपनी एवर्स टू अलोन बीइंग एमिलेरेट अकेले रहने को मन करता था, कोई किसी को ना मिले। कंसोलेशन एग्रीवेट, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन, एवराइज, फास्टिडियस। जब भी ये 7-8 रूब्रिक डाले, यू वोंट बिलीव कि जो दवाई आई दैट वाज नेट्रम कार्ब। मैंने नेट्रम कार्ब कभी यूज़ नहीं की थी, लेकिन मैंने जैन शॉल्टन के थीम्स पढ़े हुए थे, क्योंकि उनका एक बार हमने 1998 में पटियाला में उनका सेमिनार करवाया था। वो नीदरलैंड से पटियाला में 3 दिन रहे थे और उन्होंने हमें बहुत चीज़ें इस तरह की अबाउट एलिमेंट्स ये सब कुछ बताया था। तो
नेट्रम कार्ब दवाई आई। मैंने सोचा कि नेट्रम कार्ब ये इसका थीम कैसा होता है ये देखती हूँ पहले। तो मैंने जैन शॉल्टन का जो नेट्रम कार्ब का थीम है वो मैंने पढ़ना शुरू किया। नेट्रम स्टैंड्स फॉर ग्रीफ, अलोन, क्लोज्ड, डिप्रेशन, restriction, denial, forbidden, and carb. Carb stands for father. तो मुझे लगा कि वाओ ये तो बड़ी सारी चीजें मिल गई। और उन्होंने साथ में लिखा विदड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी। ये मदर की वो कंडीशन, विदड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी। हालांकि घर वाले साथ थे लेकिन उनको ये था कि सोसाइटी वाले क्या सोचते होंगे कि इसके हस्बैंड ने मर्डर कर दिया, जेल में है। इस तरह से मैं उसको थोड़ा सा जोड़ सकी क्योंकि मुझे याद आया डॉक्टर मान का केस। उन्होंने एक बार एक बच्चा अस्थमा का आया, छोटा सा 5 साल का बच्चा। तो उन्होंने उस बच्चे को बड़ी दवाइयां दी, 4-6 महीने दवाइयां चलती रही पर उस बच्चे को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने पूछा कि मदर से कि मदर की कंडीशन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब ये बच्चा होने वाला था, तब कैसी थी। फिर उसने मदर ने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे तो घर वाले बहुत तंग करते थे, बहुत ही ज्यादा। ना ढंग के कपड़े लेके देते थे, खाने पीने में इतनी रिस्ट्रिक्शन थी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। बहुत बुरी प्रेगनेंसी थी। तो उन्होंने उसके बेसिस के ऊपर टॉर्मेंटेड लाइसिन उस बच्चे को दी और वो बच्चा एक ही डोज से कितना फर्क पड़ गया उसमें, उसका अस्थमा ठीक हो गया। तो मेरे मन में ये था कि विदड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, चाहे मदर में थी, हो सकता है कि इसका भी अब इसको कंपनी पसंद नहीं है, इसको लगता है कि मैं अकेली रहूं, शायद ये हो। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंगुलर रूब्रिक था, एरर्स इन डाइट। सिंगुलर है, आज भी शायद सिंगुलर ही है, एरर्स इन डाइट। अब वीट है, बॉडी को सूट नहीं करता, तो एरर्स इन डाइट हो सकता है। देन आई गेव हर नेट्रम कार्ब 31 डोज विद सेक्लेक फॉर 15 डेज। उसके बाद फिर वो आए, मैंने उनको बोल दिया कि अभी आपने कुछ नहीं खाना, तो थोड़ा देखते हैं फिर उसके बाद खाना शुरू करेंगे। तब मैंने कोई भी पैटर्न नहीं बनाया था जो मैं आजकल पैटर्न फॉलो करती हूँ, ये मैं अभी अगले केसेस में बताऊं। तो अगली बार उनको नेट्रम का 200 दी, नेट्रम का 1 ml। वो 6-8 महीनों में ठीक हो गए। उन्होंने वीट खाना स्टार्ट किया। वो कहते डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत अच्छा डाइजेस्ट होता है। आई वॉज एस्टोनिश्ड फिर कि ये क्या है कि पहले वीट एलर्जी हुई, नेट्रम कार्ब की कुछ डोजेस देने के बाद वो बिल्कुल 100% ठीक हो गए। ऐसे कैसे? तो अभी ये केस हुआ ही था कि चंडीगढ़ से एक केस मेरे पास और आया, उसको भी वीट एलर्जी थी। तो मैंने उसको, मुझे याद भूल गया कि मैंने क्या दिया था, और वो भी 1 साल में ठीक हो गए। फिर तो पूछिए मत, वन आफ्टर अनदर, बहुत सारे सैकड़ों केस ठीक किए। सो ये केस नेट्रम, जो मेरी जिंदगी का फर्स्ट केस था, ये नेट्रम का केस था जो बहुत अच्छे ढंग से ठीक हुआ। कितने साल हो गए? 18 साल हो गए। अगर किसी को कोई क्वेरीज है किसी के मन में तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। आगे हमने 4-5 केसेस आज करने हैं। अगर किसी के मन में कोई क्वेरी है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, इसमें लगा हुआ है हाथ, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट प्लीज। One second, ma'am. Dr. Namrata wants to ask a question. या Yes, Dr. Namrata Nanwani, please ask a question. Yes, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। मैम, ये जो आप केस बता रहे थे, ये नेट्रम का मतलब डोजेस कैसे रिपीट किया आपने? हाँ, वो Please मैं explain. अभी थोड़ी देर में कुछ और केसेस बताऊंगी, इसमें तो कुछ नहीं था। मैं अच्छा, अभी कुछ देर में मैनेजमेंट बताऊंगी, उसमें सब कुछ ऐड हो जाएगा। ओके, ठीक है मैम, या ठीक है। अभी मैनेजमेंट बताऊंगी। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट केस। ये एक
ये भी मेरे पास 10-15 साल पुराना केस है। एक मेरे पास फीमेल पेशेंट आए, 19 इयर्स उनकी एज थी, उनको वीट एलर्जी थी और अभी वो 19 इयर्स थे जब वो मेरे पास आए और जब उनकी एज 5 साल की थी, तब से उनको प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा वीकनेस है, अपने फादर के साथ आए। बहुत ज़्यादा वीकनेस है, हाइट भी उनकी छोटी थी, भी ग्रोथ भी नहीं हुई, 19 इयर्स की हो गई हूँ। हमेशा ही कमज़ोरी बनी रहती हूँ, हमेशा लूज़ मोशन ही लगे रहते हैं। चाहे मैं व्हीट नहीं भी खाती, थोड़ा-सा, हल्का-सा खाने से भी बहुत ज़्यादा मुझे लूज़ मोशन लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, जो बिल्कुल जैसे टच भी कर लें, तो उससे भी उनको एग्रीवेशन हो जाती है, कि हमेशा लूज़ मोशन लगे रहते हैं, भूख नहीं लगती और जो उनकी फर्स्ट रिपोर्ट थी, दैट वाज़ 154.59 काफ़ी ज़्यादा थी और जब वो मेरे पास आए तो उनका वेट 40.8 किलोग्राम्स था। ये 14 का केस है, 10 साल हो गए। तो सामने ही बैठे थे, अपने उनके फादर थे, स्माइल ही करी जा रहे थे। मैंने कहा जी कैसा स्वभाव है? कहते बस ऐसे ही है, थोड़ी लापरवाही ही है। तो खाने पीने में मैंने बोला कितनी रिस्ट्रिक्शन करती है कि इसको वीट? कहते कभी-कभी खा भी लेती है। फिर इसको इसके पेट दर्द होता है, उल्टी लग जाती है, लूज़ मोशन लग जाते हैं, लेकिन खा-खू लेती है। तो मैंने फ्रिवलेस एटीट्यूड करके, स्माइलिंग करके मैंने उनको बेलाडोना दे दी। तो जब भी हम इन केसेस में मैं दवाई देती हूँ, तो पहले मैं 30 पोटेंसी की एक डोज़ देती हूँ। आफ्टर 1 मंथ 200 पोटेंसी की, आफ्टर 1 मंथ अनदर 1 मंथ 1 एम पोटेंसी की 1 डोज़ देती हूँ। तो इनको 30 दी, 200 दी और 1 एम दी। 3 महीने के बाद टेस्ट किया, वो फिर भी ज़्यादा था, वो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे लग गया कि ये बेलाडोना तो नहीं है। हर बार वो अपने फादर के साथ आती थी और ऑलवेज़ हमेशा स्माइल करती रहती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि और थोड़ा डिटेल में, मैंने कहा अपने बारे में बताइए। कहते जी फादर कहते बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्लास में फर्स्ट आती है। तो ये बात तो पहले बताई नहीं थी, पहले तो बोल रहे थे केयरलेस है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, कभी इसने ट्यूशन नहीं लगाई। हमेशा क्लास में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, पहले 2-4 बच्चों में ही है। कभी ट्यूशन नहीं लगाई, खुद ही पढ़ती है और अंधेरे से बहुत डरती है। अपने किताबों को, कॉपियों को बिल्कुल साफ-सुथरा रखती है। तो मैंने कहा वेरी गुड। तो आगे मैंने कहा और कुछ? कहते डॉक्टर साहब इसको ना पेंटिंग का बहुत शौक है। मैंने कहा वो कैनवस के ऊपर? कहते नहीं, नहीं, वो नहीं। रास्ते में कोई भी पत्थर पड़ा होता है, स्टोन, कोई भी पत्थर अच्छा-सा गोल-मटोल सा, ये उसको उठाती है, उसके ऊपर पेंटिंग करनी शुरू कर देती है। हमारे घर में कितने पत्थरों पे इसने पेंटिंग की हुई है। सो दिस वाज़ द केस। मैंने उसकी सोचा कि ये बेलाडोना तो हो ही नहीं सकती, बेलाडोना तो वैसे भी आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड वाला बंदा ही नहीं है। तो फियर डार्क लिया, इंटेलिजेंट लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग ली, फास्टिडियस लिया एंड आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। तो वहाँ पे कार्सिनोसिन मेडिसिन आती है। कार्सिनोसिन वैसे भी मेरी बहुत फेवरेट मेडिसिन है। पता नहीं बड़ी यस रश्मि। तो पता नहीं बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर मान हमेशा कहते हैं कि मेरे से तो कार्सिनोसिन दी नहीं जाती, मेरे पास तो कोई पेशेंट नहीं आते और मैं हफ्ते में मुझे लगता है 3, 4, 5, 7 पेशेंट्स को तो कार्सिनोसिन देती हूँ। फिर उनको कार्सिनोसिन 30 दी, 200 दी, 1 एम दी। हर 3-3 महीने के बाद मैं कहती हूँ कि टेस्ट करवाओ। जब भी हम पेशेंट को दवाई देते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि 3 मंथ्स के बाद टेस्ट करवाओ। जो पहली बार उनका 154.59 था, उन्होंने 3 महीने के बाद तो नहीं, 5-6 महीने के बाद टेस्ट करवाया, इट वाज़ 15.28। तो ये जितनी भी फिगर्स होती हैं लेस देन 20 होनी चाहिए। तो पहली बार में आफ्टर कार्सिनोसिन 15.28, फिर 10.77,
फिर हमने वीट खिलाना शुरू किया आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स कि हफ्ते में 1 बार खाना है। फिर 5.772, फिर हफ्ते में 2 बार 4.321, फिर हफ्ते में 3 बार 3.627। फिर उसके फादर ने बोला कि 1.5 साल हो गया डॉक्टर साहब, 2 साल हो चले हैं, दवाई हम क्या छोड़ सकते हैं? और लड़की भी 21 इयर्स की हो गई है, तो क्या हम उसकी शादी कर सकते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक है? तो मैंने कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? और अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और 100% ये पेशेंट ठीक हुआ। उसके बाद इसके फादर ने इसकी शादी की और बड़े सालों के बाद वो 4-5 साल के बाद इधर पटियाला में आए, तो वो मुझे मिल के गए कि हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। सो ये कार्सिनोसिन में 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि मेरी बहुत फेवरेट मेडिसिन है जी। तो एक तो इसमें डोमिनेशन बहुत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग होती है, ऑरम में भी होती है, कार्सिनोसिन में भी होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं? कार्सिनोसिन जब भी काम करता है तो किसी की डोमिनेशन के अंडर काम करता है। ऑरम सोना होता है, गोल्ड होता है, वो अंदर से चमकता है, उसको किसी के कहने की जरूरत नहीं है, उल्टा ऊपर से फालतू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीगेट। फालतू लेने वाला ऑरम होता है और जबरदस्ती लेने वाला कार्सिनोसिन होता है। कार्सिनोसिन के मैंने 80% केसेस में आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड देखा है। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आए मोहाली के यूनिट पे, उनके एक्सिला में इतना बड़ा लंप था, तो मैंने बोला कब से? कहते हैं बड़े ही साल हो गए। बड़े साल हो गए तो कभी दिखाया ही नहीं? कहते कभी नहीं दिखाया। उनकी केस हिस्ट्री वगैरह ली तो मैं अभी दवाई निकाल रही थी। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या दूं, रेपर्टराइज कर रही थी, तो मुझे कहते डॉक्टर साहब मैं तो पेंटिंग्स बहुत अच्छी करता हूँ। कि वेरी गुड। मैंने कहा, कहते दिखाऊं? मैंने कहा दिखाओ। उन्होंने मुझे अपने मोबाइल में इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स दिखाई। मैंने कहा रेपर्टराइज तो बाद में करूंगी, पहले तो आपको मैं कार्सिनोसिन देती हूँ। अपने मन में बोला। मैंने उनको कार्सिनोसिन 200 की एक डोज दी। जब वो 15 दिन के बाद आते हैं, वो कहते जी 90% जो मेरा लम्प था वो खत्म हो गया। कार्सिनोसिन इस तरह की मेडिसिन है, एक बार नहीं सैकड़ों बार इसको मैंने यूज किया है और मैंने पढ़ाया भी बहुत है। बहुत सारी मेरी वीडियोस कार्सिनोसिन की बनी। चलो एक और कार्सिनोसिन करते हैं। ये मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आए थे, ये भी 12 की बात है, 2012 की। ये आज भी आते हैं। तो ये मेरे पास आए, इनका टीटीजी था, पहले तो ज्यादा था, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे पास लेके आए वो 40 था और इनका HB 5, ओनली 5 ग्राम्स। तो मैंने कहा जी कब डिटेक्ट हुआ, कैसे हुआ? ये मेरे पास 12 में आई, लेकिन इनका डिटेक्ट हुआ था 2005 में। जो पहली रिपोर्ट थी वो तो पता नहीं लॉस्ट हो गई कहीं भी, तो पता नहीं। इनको प्रॉब्लम क्या होती थी कि लोगों को लूज मोशन लगती है, पेट दर्द होता है, इनको सांस की तकलीफ होती थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती थी और यहाँ तक कि ये फेंट भी हो जाते थे। पेट में दर्द अक्सर रहना, लूज मोशन भी लगे ही रहते थे। इतना सा भी वीट खाने से एग्रीवेशन होती थी। और मैंने पूछा जी कैसा स्वभाव है? तो उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हूँ फॉर एवरीथिंग। मैंने कहा काम क्या करते हो? कहते मैं जॉब करती हूँ कहीं भी, तो मैं हर चीज की बारीकी में जाती हूँ। मैं जिद्दी बहुत हूँ और थोड़ा बहुत टीके का इंजेक्शन वगैरह का डर लगता है। स्टडीज में मैं एवरेज हूँ, गुस्सा आता है कभी कभी और गुस्सा निकल भी जाता है, तोड़फोड़ भी कर देती हूँ। मैंने कहा और कुछ अपने बारे में बताओ? कहते मैं क्रिएटिव पर्सन। मैंने कहा वाह, वो कैसे? शी सेड के मुझे ड्राइंग करना, पेंटिंग्स करना, वॉल पे पेंटिंग्स करना मुझे बहुत पसंद है और मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई, पर मैं वैसे ही करती हूँ, बड़े सालों से करती हूँ।
तो वही इंटेलिजेंट, फास्टिडियस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएटिव एक्टिविटी या आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, ये लेकर मैंने उनको कार्सिनोसिन दी। कार्सिनोसिन 30, फिर 200, फिर 1 m। और अगली रिपोर्ट्स देखो। पहली रिपोर्ट 2.80 जो कि लेस देन 20 होना चाहिए। HB11 11 ग्राम हो गया। दूसरी रिपोर्ट 6 महीने के बाद TTG 0.9। हमने 3 months के बाद खाना पीना स्टार्ट करवा दिया कि हफ्ते में एक बार खाना है। HB 11.9। अगली रिपोर्ट TTG 0.8, HB 12.1। अगले 6 महीनों के बाद रिपोर्ट TTG 0.7 और HB 11.3। उसके अगली रिपोर्ट जो लेटेस्ट है 0.6 एंड HB 11.9। तो ये जब HB बढ़ता है, TTG कम होता है, तो पता लग जाता है कि पेशेंट ठीक हो रहा है। और इन्होंने तकरीबन 2 साल मेडिसिन ली, उसके बाद ये आज तक 100% ठीक है। अब भी कभी कभी मेरे पास आते हैं, इनकी शादी हुई, इनके बच्चे हुए और तब भी टेस्ट करवाए, तब भी ठीक है। मुझे इसके साथ ही एक और चीज याद आई। एक हमारे यूनिट पे एक बच्ची आती थी, उसको वीट एलर्जी थी। मुझे वो नंबर्स याद नहीं है अभी, क्योंकि वो मुझे वैसे ही दिमाग में बात आई। तो वो डॉक्टर इधर से हमारे पटियाला से एक डॉक्टर है बच्चों के स्पेशलिस्ट, उनसे दवाई लेते थे। 2 साल ऐसे ही लेते रहे। वो हमेशा उनको वही कैल्शियम, विटामिन ये सब कुछ देते थे। तो 2-3 साल खा ही गए, कोई फर्क तो पड़ना नहीं था, क्योंकि फिर उन्होंने बोल दिया कि दवाई तो यही है बस, और कोई दवाई नहीं। वो कहते कि ठीक तो हो नहीं रहा बच्चा। वो कहते कि दवाई तो ऐसी ही है, बस इससे कैल्शियम वगैरह ठीक रहेगा और कुछ नहीं होगा। तो किसी ने मेरे पास, मेरे यूनिट पे, मेरे कुछ चैरिटेबल यूनिट्स हैं 2-3, जिनमें बहुत नॉमिनल पैसे लेके हम पेशेंट्स को देखते हैं, जो पुअर पेशेंट्स होते हैं, जो नहीं पैसे ज्यादा कर सकते, तो उनको हम देखते। तो वो मेरे यूनिट पे आ गए। वो कहते जी ऐसे बच्ची को ये प्रॉब्लम है, वीट एलर्जी है, 2 साल लिया है और डॉक्टर्स ने बोल दिया इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा जी आप दिखाओ तो सही। तो उन्होंने दिखाया, तो कहते जी पता नहीं ठीक होगा क्या। मैंने कहा जी ठीक होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन वो उनके दिमाग में वो बात नहीं घुसी। पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम आपको 6 महीने देंगे, आप 6 महीने ले लो। अगर ठीक होना शुरू हो गया, फिर तो हम साल 2-3-4 साल जब तक आपको उसको खिलाएंगे दवाई। वो बच्ची ठीक होनी शुरू हो गई। और इसमें मैंने उसकी जो दवाई थी दैट वाज कॉकुलस, के बहुत माइल्ड है, यील्डिंग है और हर बात पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना, हैप्पीली कंटेंटेडली। और कॉकुलस दी, उसके बाद वो 2 साल चली होगी, 30, 200, 1 m, वो अभी हम करते हैं। और वो बच्ची ठीक हो गई, दवाई छोड़ दी, 2-3 साल खाई होगी। उसके 4-5 साल के बाद बच्ची के पेट दर्द हुआ और डॉक्टर्स के पास गए। मेरे पास तो आए नहीं, क्योंकि मेरा तो कोर्स वगैरह खत्म हो चुका था। तो वो गए डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला कि ऐसे होम्योपैथी ली थी तो वो तो ठीक है हमारी वीट एलर्जी। कहते कभी वीट एलर्जी भी ठीक होती है, टेस्ट करवाओ इसका। और आप इमेजिन नहीं करोगे, उसका टेस्ट वीट रोज खाती थी, कितने सालों से खाती थी, 4-5 साल 6 साल बाद वाली बात है। तो 1.2 आया। वो डॉक्टर हैरान कि ऐसे कैसे हो सकता है। बट दिस हैपेंस इन होम्योपैथी। मतलब कितने सालों के बाद, 6 साल के बाद, अभी भी उसके और घर वाले मेडिसिन लेते हैं कोई कोई और चीज की। तो इस तरह से ये पेशेंट्स ठीक होते हैं। अब जो लास्ट पार्ट हमारा रह गया दैट इज मैनेजमेंट। केसेस तो अभी भी बहुत सारे पड़े हैं, बट मैनेजमेंट पार्ट करेंगे कि हम पेशेंट को मैं किस तरीके से ठीक करती हूँ। हर कोई अपने हिसाब से दवाई देता है। पहली बात तो होम्योपैथी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कौन सी पोटेंसी यूज करनी है, 30 करनी है, 200 करनी है। कोई अपनी मर्जी से 1 m करी जा रहा है, कोई अपनी मर्जी से 10 m करी जा रहा है, कोई अपनी मर्जी से CM करी जा रहा है।
अभी मुझे किसी ने कुछ किसके बारे में बताया कि फलाना डॉक्टर है, वो मैं नाम तो नहीं लूँगी कि कितनी दवाइयाँ 30-40 दवाइयाँ सी इम्पोटेंसी में देते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एनी बिग डिजीज़। अरे क्या बात करते हैं वो! मेरे पास तो एक भी सीएम वाली नहीं होगी, 10 एम वाली भी मुझे लगता है 30-40 दवाइयाँ होंगी जो कॉमन है। होम्योपैथी को अंडरस्टैंड करके दो। ये कोई ऐसे एलोपैथी नहीं है कि आप 20-20, 40-40 दवाइयाँ आप दे के पता नहीं अंदर क्या एनर्जी से होता क्या है, ये भी नहीं पता चलता। सो अब हम मैनेजमेंट पार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, हम एएसआरएच एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन होम्योपैथी में हमने एक पैटर्न बनाया जब हम ये सैगल जब हमने ये सैगल्स स्कूल को फॉलो करना शुरू किया कि हम हर केस को 30 पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डिसेंडिंग पोटेंसी जो कि हेनीमैन ने क्रॉनिक डिजीजेस बुक में लिखी है, फिर हम 6 देंगे, उसके बाद हम 200 देंगे, फिर हम 1 एम देंगे, फिर 10 एम देंगे। इस तरह से हमने ये पैटर्न फॉलो करना शुरू किया और डॉक्टर मान तो 100% ये पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन मेरे मन में होता है कि थोड़े एक्सपेरिमेंट्स भी करो, तो कभी कभार मैं थोड़ा इसको हिला देती हूँ, लेकिन वीट एलर्जी वाले किसी भी केस में मैं ये पैटर्न नहीं हिलाती। सबसे पहले हम 30 पोटेंसी की एक डोज देते हैं, देन सेक्लेक फॉर 15 डेज, अगर महीना है तो भी सेक्लेक फॉर 1 मंथ, नेक्स्ट मंथ में हम 201 डोज देते हैं और थर्ड मंथ में हम 1 एम 1 डोज देते हैं और 3 महीनों के बाद मैं कहती हूँ कि दोबारा से आप इसका टेस्ट करवाइए, टीटीजी करवाइए। अकेले 2 टेस्ट करवाने होते हैं, एक टीटीजी, एक एचबी। एचबी मैं इसलिए करवाती हूँ क्योंकि इन लोगों का एचबी बहुत लो हो जाता है, तो ये दोनों टेस्ट करवाते हैं। जिनके पहली बार में ही लेस देन 20 या लेस देन नॉर्मल लिमिट में आ जाता है, उसको कंसिडर करते हैं कि यस द पेशेंट इज डूइंग वेल। हर महीने आई रिपीट 1 डोज ऑफ 1 एम पोटेंसी फॉर सो मेनी मंथ्स। कभी कभी जब मुझे लगता है कि बिल्कुल भी इसको जरूरत नहीं है, तो कभी कभी मैं स्किप कर देती हूँ, 2 महीनों के बाद देती हूँ। 3 महीनों के बाद अगर रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, फिर हम अगले 3 महीनों के लिए 1 एम 1 पोटेंसी देके फिर हम उसको बोलते हैं कि 3 महीनों के बाद दोबारा टेस्ट करवाना है, मतलब कि 6 मंथ्स के बाद। तो ये 6 मंथ्स का पीरियड मैं क्यों रखती हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है। तो साइंस कहती है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विलाई श्रिंक हो जाते हैं, उनको ग्रो होने में 6 महीने लगते हैं। तो ये जो 6 मंथ्स का पीरियड होता है कि आपने बिल्कुल नहीं खाना, 100% बंद रखना है। इतना सब कुछ मैं बंद करवाती हूँ, लाइक कोक नहीं पी सकते, चॉकलेट नहीं खा सकते, बर्फी वगैरह नहीं खा सकते, और कोई भी ऐसी चीज जिसमें हल्का सा भी टेंड पैक्ड चीजें जो होती हैं, डिब्बे में बंद होती हैं, लिफाफे में बंद होती हैं, बाहर से फ्राई होके आती हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते। यहाँ तक कि टेंड जूस भी नहीं ले सकते। जूस पीना है, फ्रेश जूस निकालो, वो लो, दूध जितना मर्जी पियो, दही जितना मर्जी खाओ, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं खा सकते। सो 6 महीने हो गए, उसकी दोनों रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। या दूसरी कंडीशन के 6 महीने हो गए नेगेटिव नहीं आए। हम दोनों कंडीशंस को अलग अलग करेंगे। पहले जिसमें नेगेटिव आ गई दोनों बार, तो हम उसका 6 महीने के बाद उनको बोलेंगे कि 3 मंथ्स के लिए हर हफ्ते में संडे के संडे इसने 1 टाइम व्हीट खाना है, ताकि बॉडी थोड़ी यूज टू हो। ये नहीं कि 1 टाइम में ही रोज खिला दो, वो फिर वहीं पहुंच जाएगा। जब तक मेरी मेडिसिन इफेक्ट करती रहेगी तब तक वो आगे ठीक होता रहेगा। लेकिन अगर इस स्टेज में बहुत सारे लोग पेशेंट इस स्टेज में खराब कर लेते हैं कि जी बच्चा मानता नहीं है, वो तो रोज ही खाई जा रहा है, और जब अगली रिपोर्ट आती है 150 आ जाती है, 200 आ जाती है। मैं कहती हूँ जी अगर ट्रीटमेंट करवाना है तो ढंग से करवाओ, नहीं तो मत ही करवाओ। ये क्या हुआ कि बच्चा नहीं मानता,
पहले भी तो 6 महीने इसने खाने से इसको रोका है ना आपने। तो अब हफ्ते में एक बार बोला है, मतलब हफ्ते में 1 टाइम ओनली। संडे के संडे आप रख लो कि संडे सुबह बच्चे की पसंद की चीज, कोई ब्रेड हो, कोई केक हो, कोई परोंठी हो, कोई पूरी हो, कुछ भी व्हाटसोएवर। फिर 3 महीने देकर अगर फिर से रिपोर्ट टीटीजी नेगेटिव आता है, फिर हम हफ्ते में 2 बार करते हैं। एक संडे को हो गया, एक थर्सडे, बुधवार या वीरवार को हो गया। फिर 3 महीने के बाद टेस्ट होता है, फिर उसमें एलर्जी बिल्कुल नेगेटिव आती है, फिर हम हफ्ते में 3 बार करते हैं। जब 3 बार करते हैं तो पेशेंट्स अक्सर रोज ही लेना शुरू कर जाते हैं, तो वहां तक वो बिल्कुल 100% ठीक हो चुके होते हैं। फिर भी मैं फॉलो अप उसका 1 ईयर फिर भी करती, कि हमने फिर भी चलो 3 महीने छोड़ दो, 4-5 महीनों के बाद दोबारा टेस्ट करवाना है, एंड यू कीप टेकिंग दिस मेडिसिन, दवाई लेते रहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी साइड की, जिसमें पहली बार मान लो पहली बार 500 उसकी थी रिपोर्ट, दूसरी बार में 3 मंथ्स की दवाई ली, उसमें उसकी आ गई 150। अगली बार 3 महीने के बाद फिर करवाई, उसकी फिर भी आ गई 50। मान लो एक जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, 50 आ गई। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी उनको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप अभी कुछ खाना शुरू कर दो, नो नॉट एट ऑल। फिर मैं उनको कहती हूँ कि पहली बात तो इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए थी। 2 चीजें हैं, या तो बच्चा अभी भी खा रहा है, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलर्जी है। तो जब 3 महीने के बाद, कई बच्चों के 1 साल के बाद बड़ी मुश्किल से नेगेटिव आती है, फिर पैटर्न वो ही फॉलो करना है कि हफ्ते में 1 बार फॉर 3 मंथ्स, हफ्ते में 2 बार अगेन फॉर 3 मंथ्स, उसके बाद 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, वो ऐसे ही चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि ये जो पैटर्न मैं फॉलो करती हूँ, बहुत ही तरीके से पेशेंट ठीक होता है। और जिसने भी ढंग से दवाई ली, जिसने भी तरीके से जो मैंने बोला वो फॉलो किया, मुझे लगता है कि कभी भी वो पेशेंट ऐसे नहीं हुआ कि ठीक ना हुआ। सो अगर आपके पास भी कोई ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो एक पैटर्न फॉलो करें। बहुत बार मैं देखती हूँ कि पेशेंट्स आकर बताते हैं कि हम फलाने डॉक्टर से ले रहे थे दवाई, तो उन्होंने तो बंद किया ही नहीं वीट, वो तो कहते थे रोज खाओ। मैंने कहा जी ठीक हो गए, कहते नहीं ठीक तो नहीं हुए। मैंने कहा बस यही फर्क है, आपको एक बार बंद करना होगा, क्योंकि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई है वो खत्म हो चुके हैं, उनको बनने में, उनको ग्रो होने में 6 महीने लगते हैं, तो 6 महीने तो आप बिल्कुल नहीं खा सकते। सो इस तरह से हम पेशेंट्स को ठीक करते हैं। एंड एक और लास्ट में एक और केस करते हैं। ये भी एक फीमेल है, 24 इयर्स की। ये मेरे पास आए थे, ये भी 12 में आए थे। इनका वेट था 40 किलोग्राम्स, इनका टीटीजी था 88.049। तो बहुत बार क्या होता है कि छोटी सी बात करके उसमें से सारा कुछ निकल आता है। बहुत बार लंबी लंबी केस हिस्ट्रीज भी लेनी पड़ती है। तो मैंने बोला जी प्रॉब्लम बताइए, कहते डॉक्टर साहब कितनी पतली हूँ मैं, 40 किलो वेट है, और मुझे तो खून की उल्टी आई। तो जब डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बोला कि इसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होगी, ये वाले टेस्ट होंगे, और मुझे अस्थमा भी रहता है, इनहेलर यूज करती हूँ, मुझे स्किन की प्रॉब्लम भी है, हर चेंज ऑफ वेदर में मेरी स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और अनीमिक तो मैं 7-8 साल से हूँ ही, क्योंकि मुझे सीलिएक डिजीज है, और मेरा HB सिर्फ 6 रहता है। तो मैंने कहा जी अपने बारे में बताइए, अपने नेचर के बारे में। तो कहते कि चलो गुस्सा गुस्सा तो आ जाता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है, कहती भी नहीं किसी को ज्यादा कुछ, लेकिन मैं अपनी बीमारी के बारे में बहुत सोचती हूँ। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है, बहुत कॉन्फिडेंट इन स्पीच एंड जेस्चर्स, एंड थ्रू आउट हर एकेडमिक करियर शी वॉज द टॉपर। तो मैंने बोला कि आप कोई ट्यूशंस वगैरह, कहते नो, ट्यूशंस मैंने कभी नहीं लगाई, खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं पढ़ती हूँ। और
मैं ऑलराउंडर हूँ, गेम्स में भी पार्टिसिपेट करती हूँ, फर्स्ट आती हूँ, डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करती हूँ, फर्स्ट आती हूँ। और अभी मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है एट द एज ऑफ 24, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। तो मैंने कुछ रेपर्टराइज नहीं किया, वही थीम लिया, गोल्ड का थीम, ऑरामेट। मैंने उनको ऑरामेट दी। ऑरामेट ऑलराउंडर होता है, हर फील्ड में जहां भी जाएगा चमकेगा। सोना अगर जमीन पर भी गिरा हो तो भी वो चमकता है। तो उसी तरह से ये लड़की थी। और मैं 31 डोज दी, 201 डोज दी, 1M1 डोज दी। इनका वेट 3 महीनों में 42.6 किलोग्राम्स हो गया, TTG 16.2 एंड HB 9। उसके बाद फिर उनको 1M चलती रही एवरी मंथ। और 3 महीनों के बाद उनको 1 टाइम स्टार्ट किया, फिर 2 टाइम स्टार्ट किया। उनका TTG नेक्स्ट आया 9.0, HB वाज 9.4। उसके बाद वो ट्रीटमेंट अभी पूरा नहीं हुआ था, अभी बहुत चाहिए था। बस उन्होंने बड़ी मुश्किल से 8-9 महीने लिया, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गए। 8-9 महीनों में ही उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि उनकी जॉब कहीं और की। तब ये ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं होता था इतना ज्यादा। तो वो बीच में क्या छोड़ के, मुझे लगता है कि वो ठीक ही बिल्कुल हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट wheat allergy, gluten sensitivity and celiac disease. अगर किसी के मन में कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन प्लीज अनम्यूट एंड हमसे पूछ सकते हैं। Yes, we have some queries here. Dr. Akula wants to ask something. Yes, Dr. Akula, please. Hello, ma'am. Thank you for giving Hi. this time. That was a wonderful seminar, ma'am. Thank you for the information. I just have one question, ma'am. I have patients who are complaining of wheat allergy, but the symptoms that they often complain of is of the upper GIT. Mostly it is of heartburn, mostly gastritis that begins after having anything that is made of wheat, like chapati or puri. So, what could be our line of treatment? Should we go with the same methodology, or is it some other kind of disease? इसमें तो अगर ग्लूटेन एलर्जी या व्हीट एलर्जी, उसमें तो हम टेस्ट करवाते हैं TTG। तो प्रॉब्लम चाहे उसके गले में हो, उसको लगता है एसिड बहुत बनता है, उसके अपर पार्ट में हो, चाहे पेट में हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, हमारा जो कंफर्मेटरी टेस्ट TTG ही रहेगा। अगर TTG ज्यादा है, मोर देन, आजकल तो बहुत सारी किट्स आ गई हैं, किसी में 4 होता है, किसी में 16 होता है, 20 होता है। तो अगर TTG ही हमारा कंफर्मेटरी चीज है, वो ही हमने करवाना है। HB लो होगा पक्का, जनरल एसिडिटी होगी, उसमें HB लो नहीं होता है। HB लो सिर्फ तभी होगा अगर उसको ग्लूटेन एलर्जी है या ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, या कोई भी इन टर्म्स में से जो मैंने अभी बोली है, उन टर्म्स में से है। तो मुझे लगता है कि हमारा पैटर्न तो सेम ही रहेगा। तो कंफर्म TTG से होगा या बायोप्सी से होगा। Thank you, ma'am. जी, एनी अदर क्वेश्चन? चलो, मुझे लगता है कि अकुला, Yes. Dr. Akula, I think she only had raised the question. We have Dr. Vaijayanti Nagarkar also, who has raised her hand. Yeah. Dr. Vaijayanti, please put forth your question. Yes, ma'am. हेलो, यस। मुझे ना इसमें से आवाज बहुत लो आ रही है, तो मुझे कान थोड़ा पास I करना think पड़ we'll रहा है। start with Dr. Akula. Yeah, जी। so it's a great thing. We always see your YouTube videos, but today we got to see you personally. And थैंक यू। it's such a wonder that without any single slide, you have been able to engage all of us. That's commendable. चलो, अभी मैं एक और चीज बताती हूँ। रिसेंटली मैंने एक बुक लॉन्च की है, गाइड टू रूब्रिक्स। तो बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये ली है। इसमें मैंने सिंथेसिस रिपोर्टरी को उनका डॉक्टर श्योन से परमिशन लेकर सारी माइंड सेक्शन को एक्सप्लेन किया है, जो मैं रूब्रिक्स पिछले 10 साल से डाल रही हूँ। सारे के सारे माइंड रूब्रिक्स को मैंने ट्रांसलेट किया है
और उनको एक्सप्लेन किया है। टोटल 850 के करीब मेन रूब्रिक्स है, सब रूब्रिक्स तो बेअंती हैं। 650 पेजेस की ये बुक है, 2 साल इसको बनाने में लगे और ये मैंने लॉन्च की थी 10th नवंबर को और मैंने 500 बुक छपवाई थी। यू वोंट बिलीव कि 10 दिसंबर तक 500 की 500 बुक मेरी जा चुकी थी। सो दिस इज नाउ, अब मैंने दोबारा ये छपवाई है। तो जो भी कोई डॉक्टर्स माइंड पे प्रैक्टिस करते हैं, माइंड को और लर्न करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मैंने जगह जगह पे डीडी दिया है, हम एक रूब्रिक को दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसमें जगह जगह पे जहां भी मुझे लगा कि मेटाफॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है उस रूब्रिक का, तो मैंने वो भी एक्सप्लेन किया है। सो जो भी डॉक्टर्स लेना चाहें मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे थ्रू ही ये बुक मिलेगी। इसकी जो प्राइस है दैट इज 1299, 1299 रुपए, वो भेज के आप मेरे से ये बुक ले सकते हैं। I had a question, Dr. Neelam, that the other day we were just discussing about miasms and tuberculum miasm, etc. Or did you ever give any kind of anti-miasmatics in your cases? ओके, जब से हम सैगल सिस्टम में आए हैं, जब से हम माइंड टेक्निक में आए हैं, हमने 4-5 चीजें बिल्कुल छोड़ दी। पहली बात, कोई एक्यूट ये एक्यूट मेडिसिन है, ये क्रॉनिक मेडिसिन है, ये उसकी क्रॉनिक होगी उसके बाद ये देंगे, हमने वो सब छोड़ दिया है। क्योंकि मैंने अपने इस करियर में कैंसर को बेलाडोना से ठीक किया है, आर्थराइटिस को एकोनाइट से ठीक किया है। तो ये कुछ नहीं है कि ये शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, ये सब हमने छोड़ दिया। हमने सिर्फ एक चीज पे फोकस किया कि पेशेंट के माइंड को पढ़ो, वो रेपर्टाइज करो, जो दवाई निकलती है उसके अकॉर्डिंगली दो। दूसरी बात, हमने कभी भी मयाजम ना सैगल्स ने कभी कंसिडर किए हैं, ना हमने कभी किए हैं। मुझे लगता है कि मयाजम जो है वो बहुत पुराने टाइम में मेन 3 डिविजन्स थे चीजों के, कि ये इस तरह से एक सोरा है, सिफिलिस है। अभी तो इसके भी बहुत आगे कितना कुछ, कोई कैंसर में आजम, कोई ट्यूबरकुलर में आजम, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी इसको कंसिडर नहीं करते। हम सोचते हैं कि अगर मेडिसिन वेल सिलेक्टेड है तो वो अपने आप में आजम कवर कर लेगी। तीसरी बात, हम कोई भी इंटर करंट मेडिसिन नहीं देते कि अब ये दिए तो इसके बाद ट्यूबरकुलाइनम दे दो या इसके बाद कार्सिनोसिन दे दो। नो, हम किसी भी नोसोन को भी, कार्सिनोसिन को भी मैं पहले 30 में यूज करूंगी, फिर 200 में, फिर 100 में। ट्यूबरकुलाइनम को भी ये नहीं है कि हमने 30 में तो ये यूज नहीं करने, ये अपने सिम्टम प्रोड्यूस कर देंगे, ऐसे कर देंगे। नो, नथिंग हैपेंस। पिछले 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी तक मैंने कभी एग्रीवेशंस नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि हम बिल्कुल 30 पोटेंसी के सिंगल डोज यूज करते हैं। एग्रीवेशंस वहां होती है जहां वो सीएम यूज करते हैं, और वो भी पता नहीं कितने कितने लंबे टर्म, वो भी सीएम दे दो, वो भी दे दो। व्हाट इज दिस? अगर आपकी मेडिसिन वेल सिलेक्टेड है, 30 पोटेंसी में भी एक्ट करेगी, 100% करेगी। बस तो हमने वो सब कुछ पुरानी नोशन छोड़ दी। हम तो, हमारा फोकस सिर्फ एक है, पेशेंट जो बोलता है उसको ध्यान से सुनो, उसका थीम निकालो, उसके बारे में देखो कि वो चाहता क्या है, रेपर्टाइज करो, जहां पे कारण मिलता है वो कारण देखो और वो मेडिसिन दे दो। इन दिस पैटर्न। Thank जी। you. Very well explained, Dr. Neelam. This was a really nice concept, something new, yes, and something worth considering. Is there anyone else who would like to ask any questions further? We have Dr. Shaha Shabnam, who has raised her hand. Yes, Dr. Shah Shabnam, please, can you raise your question? Can you just speak your question out? यस मैम, नमस्ते मैम। मैम नमस्ते जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने अभी बताया, एक्चुअली मैंने इन बिटवीन ज्वाइन किया बिकॉज स्टार्ट में थोड़ा पेशेंट्स थे, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने बताया कि जब पेशेंट ऑलमोस्ट क्योर हो जाता है, 1M आप दे रहे हो, फिर पेशेंट क्योर हो जाता है और आप 1 ईयर के लिए उसको देखते हो, तो यू आर कंटिन्यूइंग विथ प्लेसिबो फॉर अ ईयर or you are prescribing the 1M potency along? No, 1M potency, 1 dose every month, 1 dose only.
1 dose मैं आफ्टर क्योर हाँ, आफ्टर हर जो मुझे रिपोर्ट लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से ठीक होता है उनमें मैं स्किप भी कर देती हूँ कि छोड़ो क्यों ज्यादा देना। अभी मैं एक और चीज बताती हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो सिंगल मेडिसिन पे प्रैक्टिस करते हैं, वो एक मेडिसिन की एक डोज दे दी और बैठे रहे, देखते रहे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। अब जरूरी तो नहीं कि हम एग्रीवेशन ही देखें कि कब वो उसकी बढ़ेगी, कब नेक्स्ट पोटेंसी देंगे, तो मैंने उसको छोड़ दिया। बाकी केसेस में हम देखते हैं कि पोटेंसी नेक्स्ट तब देनी है जब उसकी एग्रीवेशन दोबारा हुई। अब जरूरी है कि उसका टीटीजी जो आज पहली बार 300 था दोबारा 300 पर जाएगा तो ही मैं अगली पोटेंसी दूंगी। सो इसलिए मैंने 30, 200, 1M every month I give 1 dose of 1M potency, rest all is placebo. ओके मीन्स आफ्टर क्योर जब आपके रिपोर्ट्स कंटिन्यूअसली नॉर्मल आएंगे उसके बाद भी आप 1M कंटिन्यू करोगे फॉर अ ईयर? या Correct. बिल्कुल करूंगी। मैंने Okay, अभी तो that's उसका जवाब दिया। हाँ गॉट इट। या थैंक यू मैम, थैंक यू। जी। बहुत काफी इंफॉर्मेटिव था मैम, बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये जो Thank you. चीज है 30, 200 and 1M इट इज Yeah. रियली नाइस। इन सम केसेस आई गॉट द रिजल्ट बट मुझे एग्जैक्टली नहीं ये आइडिया था कि सभी केसेस में इतना अच्छे से वर्कआउट होता है। होता है। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। जी In डॉक्टर fact, I have one friend of mine who gives 3 doses of the same remedy on consecutive days. That is 30, 200 and 1M for 3 consecutive days and then doesn't give anything for a month. Even that works. maybe या okay then. Yes, any other questions? Anybody would like to ask any questions? Yes, Dr. Vaishali. I just want to mention, actually, I don't have a question right now, that I have not seen so many cases of wheat allergy for years together now. So I'm quite surprised that the volume that you're seeing in your region is very high. We do see cases, but one case or one case in 2 months or a month. Okay, this is my book Marvelous Sapphire. ये मैंने 19 में पब्लिश की थी। इसके पहले जो 10 केसेस हैं वो सारे वीट एलर्जी के हैं। Quite surprised actually to me. मैं एक और बुक पब्लिश करने जा रही हूँ जिसमें 100 केसेस वीट एलर्जी के होंगे, विद रिपोर्ट्स, विद मेडिकेशन, जो भी सब कुछ है। जी। I'm very surprised, happily surprised. Yes, any further questions? Dr. Vajanti, I suppose you have raised your hand. Would you like to ask any question? Anybody else? Yes, so yes, Dr. Ruchi Mehta has raised her hand. Dr. Ruchi? Yes, ma'am. Hello, ma'am. I've been seeing your videos always. I follow your videos, and they are really very informative and knowledgeable. My question to you is the same, that I have seen patients who have severe bloating, like to the extent that they feel suffocated after eating wheat. So you think in that cases we should do the test? They have not done मुझे the कुछ test. भी सुनाई नहीं दिया, शायद इनकी आवाज थोड़ी। Okay. हाँ, ma'am. Today my voice is little bad. Ma'am, can you hear me now properly? मुझे Ma'am, हल्का सा I'll सुन try रहा to है। repeat what she has said. She says that she has seen patients who have had bloating after eating substances made from wheat. So, yes, further, what would you like to ask? Ma'am, so in that case, should we treat it as wheat allergy or नो, should we वीट do the एलर्जी test? हमेशा हम टीटीजी करवाएंगे, उसका टेस्ट Okay. करवाएंगे, उसी से कंफर्म होगा तभी हम वीट एलर्जी कंसीडर करेंगे। वैसे किसी का पेट दर्द करता है, बच्चों का करता है, एंजाइटी की वजह से भी होता है, बहुत और कारण होते हैं, लेकिन अगर टीटीजी उसका ज्यादा आता है तो हम Okay. उसको सिर्फ वीट एलर्जी या सीलिएक डिजीज कंसीडर करेंगे, नॉट इन एवरी केस। Okay, anybody else? There was one more person who had raised her hand. Yes, Dr. Mona Parmar and Dr. SB. Yes, there are few more questions, ma'am.
Yeah. Dr. Mona Parmar. Yeah, good evening, ma'am. First and foremost, heartiest congratulations for solving such beautiful cases. क्योंकि as Vaishali told you, मुंबई में बहुत कम cases ऐसे हमने देखे हैं wheat allergy के. So one question is very strong that suppose जैसे आपने बोला कि 30 देते हो फिर अगले महीने 200 और उसके बाद 1M. तो suppose if at all कोई acute symptom आ गया, उसको कुछ सर्दी खांसी हो गई या फीवर आ गया, तो देन व्हाट, हाउ डू यू मैनेज? मान लो किसी को मैंने बेलाडोना दी है, तो मैं बेलाडोना की 30 की 2-3 डोजेस और दे दूंगी। वो उसे, क्योंकि उसको रेपेटाइज तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, उसकी दवाई तो मैंने निकाली हुई है। सिर्फ एक फीवर ऐसी चीज है, बच्चों में खास करके फीवर ऐसी चीज है जिसमें मैं बोलती हूँ कि आप पैरासीटामोल बच्चे को जरूर दे दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्वर्जन्स आने शुरू हो जाते हैं। बाकी कोई एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, वो मैं अपने आप ही बेलाडोना से, एक्पोनाइट से, किसी भी चीज से कवर कर लूंगी। जैसे एक मेरे पास एक बच्चा था, तो उसके यहाँ पे इतना बड़ा सिस्ट था, वो 2 साल उसने मेरे से मेडिसिन ली, और उसको मैंने, जब बुखार हुआ सट्रामोनियम थी तो भी सट्रामोनियम दी, जब लूज मोशन हुए तो भी सट्रामोनियम दी, कुछ भी उसको होता था तो सट्रामोनियम 30 लो पोटेंसी में 30 में दे देती थी और वो उसी से ठीक हो जाता था। तो अगर कोई भी ऐसी एक्यूट कंडीशन बीच में, अब ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही अस्थमाई हो गया, कोई सांस की ऐसी प्रॉब्लम होगी, वो अलग चीज है, वो हम उस वक्त मेडिसिन हम डिफरेंट कर सकते हैं उसके प्रेजेंट सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली। तो कुछ देर के लिए विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं अभी इसको इस मेडिसिन की जरूरत है तो हम वो देंगे, लेकिन इन जनरल जब भी हम वेल सिलेक्टेड मेडिसिन देते हैं तो वो 30 पोटेंसी में भी 6 में भी उतना ही काम करती है जितने उसको एक्यूट प्रॉब्लम में किसी भी मेडिसिन की जरूरत होती है, सिर्फ एक फीवर को छोड़ के। फीवर में मैं कहती हूँ कि बच्चों को जरूर क्रोसिन दिया करो ताकि 100 से ज्यादा ना हो, क्योंकि कन्वर्जन्स बहुत बच्चों में देखने को मिलते हैं कि थोड़ा सा फीवर बड़ा और कन्वर्जन्स हो गए। ओके जी, थैंक यू सो मच मैम। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग जी। और आपके रुब्रिक्स के वीडियोस बहुत अच्छे रहते हैं और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी फॉरवर्ड करती हूँ। गुड। तो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सिंपल तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। मुझे एक बात पूछनी थी मैडम, ऑर्गेनॉन में हम रिपीटेडली पढ़ते हैं कि यू शुड नॉट रिपीट द मेडिसिन टिल यू सी इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट। तो ये हर जगह पे हर स्टॉलवर्ट ने इसको बहुत स्ट्रेस देके बहुत बार ये बोला है, लेकिन जब आपका भी हम लोग सुन रहे थे तो आपने बोला कि इम्प्रूवमेंट बता रहा है पेशेंट, फिर भी आप एवरी मंथ 1M रिपीट करते जाओगे। या तो मैं आप इसका थोड़ा इसका explain जवाब करेंगे? मैं देती हूँ। डॉक्टर माल मेरे गुरु, जिनकी मैं फर्स्ट इंटर्नी थी, जिन्हों से मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके पास जब भी कोई पेशेंट आता है वो हमेशा 30 पोटेंसी की एक डोज देते हैं, जो हम पैटर्न फॉलो ही करते हैं। उसके बाद वो वेट करते हैं कि जब इसके सिम्टम्स एग्रीवेट होंगे या बढ़ेंगे तब मैं नेक्स्ट पोटेंसी दूंगा। उन्होंने वीट एलर्जी वाले केसेस में भी ऐसा ही किया, लेकिन उनसे एक भी सिंगल केस वीट एलर्जी का ठीक नहीं हुआ। ये उनकी काबिलियत की बात नहीं कर रही, मैं उनके दवाई देने के तरीके की बात कर रही हूँ। काबिलियत तो उनकी पूछो मत। तो उन्होंने वो किसी भी पेशेंट को 30 से आगे उन्होंने रिपीट नहीं करनी जब तक के कोई सिम्टम्स दोबारा रीअपीयर ना हो। अब वीट वाला पेशेंट आया, मान लो उसके 30 पोटेंसी दी, उसके 3 महीने कोई भी वो नहीं आए, उसके बाद जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो वो अभी भी उतना हाई था। तो डॉक्टर मान से एक भी केस ठीक नहीं हुआ, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने रेपिटेशन नहीं किया। मैं हमेशा हर वीडियो में यही बोलती हूँ, क्योंकि वो रेपिटेशन नहीं करते। और मैं क्या समझती हूँ कि 30 के बाद 200 दी, 200 के बाद 1M दी, मैं पेशेंट की एनर्जी को, उसकी जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही हूँ बीमारी से लड़ने के लिए, बाय गिविंग जस्ट 1 डोज ऑफ 1M पोटेंसी एवरी मंथ। ये नहीं है कि हम वेट करेंगे कब तुम्हारी एग्रीवेशन होगी, कब मैं, वो तो पेशेंट 2 महीनों में ही भाग जाएगा कि हम दवाई तो कोई दे नहीं रहे। मान लो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद फिर उसकी रिपोर्ट उतनी ही आ गई,
वो दवाई नहीं लेंगे। लेकिन जो पैटर्न मैं फॉलो करती हूँ वो मुझे लगता है कि पिछले 18 साल से फॉलो कर रही हूँ। उससे 30 से थोड़ी उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हुई, 200 से और हुई, 1M से और हुई, क्योंकि हम कोई बॉडी में कोई ऐसा कोई केमिकल्स थोड़ी डाल रहे हैं, हम तो एनर्जी डाल रहे हैं उसमें। वो एनर्जी उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। मैं इस तरीके से सोचती हूँ। और बार-बार देने से उसकी इम्यूनिटी आप देखो कि एक मरीज को मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है, इसको अब मैंने कुछ नहीं देना। लेकिन वो मरीज 6-8 महीनों के बाद बहुत एग्रीवेट हो जाएगा या उसका टीटीजी बिल्कुल रेंज में नहीं रहेगा। जिसको मैं दे रही हूँ उसका रेंज में है, जिसको नहीं देती वो डॉक्टर मान, और वो उनके पास कोई भी पेशेंट आता है, उनका कॉन्फिडेंस ही इस बात में लो हो गया कि नहीं, जाके डॉक्टर नीलम से ही ले लो आप तो दवाई, इस तरह का। सो मुझे लगता है कि मैं जो पैटर्न फॉलो करती हूँ वो ठीक है। नहीं जी मैडम, हाँ, मुझे ये पूछना था कि पेशेंट इम्प्रूव होने के बाद भी आपने बोला कि आप एवरी मंथ 1M रिपीट करते हैं। हाँ, तो ये मुझे पूछना था कि हम लोग जब बोलते हैं कि टिल पेशेंट इज इम्प्रूविंग आप रिपीट मत करो, तो ये कैसे हम लोग नहीं, कंसिडर? जब हमने पेशेंट का वेट बंद कर दिया उसके सिम्टम तो सारे डिसअपीयर हो गए। क्या हम वेट करें कि दोबारा उसके सिम्टम्स अपीयर होएं? सो उस सिचुएशन को अवॉइड करते हुए मैं हर महीने मेडिसिन देती हूँ एंड आई जस्ट गिव 1 डोज कुछ नहीं होती। आप लोगों को देखिए जाके 100 दवाइयां देते हैं, इतनी बेचते हैं, दे सेल मेडिसिन। एक डिब्बी में 12 दवाइयां होती है और 10 डिब्बियां देते हैं। कोई रेक बैक का कॉम्बिनेशन, कोई बैक्सन्स का है, किसी का भी है। मैं तो फिर भी एक ही डोज दे रही हूँ 1 मंथ में और मुझे उससे रिजल्ट मिल रहे हैं। ओके मैडम, ओके, थैंक Hats यू। off to you, ma'am. We have और few more questions. देखो 18 इयर्स से आज तक एक भी केस फेल नहीं हुआ जिसने ढंग से दवाई ली है। हाँ, कोई 2 महीने दवाई लेके छोड़ के चला गया, मैंने उनको काउंट ही नहीं किया कहीं भी। अगर पेशेंट्स ठीक होते हैं विद नॉर्मल रिपोर्ट्स, आज भी मेरे पास 10 ऐसे लोगों की रिकॉर्डिंग्स होंगी जो मुझे जाते जाते ये बता के गए कि डॉक्टर साहब, एक पीछे लड़का आया कनाडा से, कहता डॉक्टर साहब मुझे पहचानो आप, बड़ा हैंडसम लंबा सा लड़का। तो मैं उसकी तरफ देखती रही, मैंने कहा तुझे मैंने पहचान लिया है। मैंने कहा जब तू 7 साल का था ना तब तुझे वीट एलर्जी हुई थी और आज कैसे है? आज वो 20 इयर्स का है। उसने बोला मैडम तब से मैं वीट खा रहा हूँ, अभी कनाडा में रहता हूँ, पढ़ता भी हूँ, जॉब भी करता हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जरूरी नहीं है कि हम वही चीजें फॉलो करते रहे कि कब पेशेंट के सिम्टम्स दोबारा होंगे तब हम 200 की एक पोटेंसी देंगे, एक डोज देंगे। नो, किसी भी केस में फेल नहीं हुई अगर मैंने ये पैटर्न फॉलो किया है, मुझे तो यही लगता है। We have Dr. Ranjan Solanki also waiting. She wants to ask some question. Dr. Ranjan Solanki. जी, Dr. Solanki, can you please ask your question? Hello. जी, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग We जी। heard your lecture with a very light mood without any tension, and would like to say that you are so enthusiastic and we enjoyed a lot, ma'am. Now I Thank want you. to ask you one थैंक यू। question. और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। हाँ डॉक्टर मैम। जैन शॉल्टन, जिनका मैंने बीच में जिक्र भी किया, उनको हमने 98 में यहाँ बुलाया था पटियाला में और बहुत बड़ा हमने सेमिनार किया था। 600 के आई थिंक करीब डेलीगेट्स थे, तब की बात है 98 की। वो हर महीने 1M की, वो हर केस 1M से स्टार्ट करते हैं, हर महीने 1M की 1 डोज रिपीट करते हैं हमेशा। उनकी बुक्स हैं हमारे पास, मिनरल्स वाली एक और दूसरी एलिमेंट्स की। वो हर महीने एक डोज 1M की रिपीट करते हैं। Okay, ma'am. Yeah. Ma'am, I would like to ask one question. Yeah. That wheat allergy test considered every time autoimmune disease? Because one of my patient has a wheat allergy with another allergy too.
presented with Yes, wheat wheat allergy. allergy is an autoimmune disorder. क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाए थे वो उसका ही इम्यून सिस्टम खा गया. Yes, सीलियक ma'am. डिजीज, व्हीट एलर्जी, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, सब ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही है. Okay. Yes, And then definitely. patient has no weight loss, no HB reduced, even though. हाँ, इवन दो अगर Even टीटीजी though, पॉजिटिव आया है, ज्यादा है, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही है. Okay. Then we have to हाँ, follow बिल्कुल. that same pattern as हर एक के TTG test. सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं. एक तो मेरे हम्म. पास एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं कि कोई सिम्टम्स ही नहीं है, लेकिन रिपोर्ट 200 आई है. ऐसे भी होते हैं. फिर वो हम जनरल नेचर के ऊपर लेकर फिर मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं. Okay, with the class, we have to classify the case according to his or her history. Yeah. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. We have Dr. Ekta Kosar who is waiting for asking a question. Yes, Dr. Ekta, please ask your question. Thank you so much for enlightening the knowledge about celiac disease, ma'am. जी. अभी एक्चुअली आपका लेक्चर सुन के मुझे मेरा केस याद आ रहा है बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग सॉल्व सिंस क्वाइट अ लॉन्ग. उनका ना मैम कोलेसिस्टेक्टमी हो गया है एंड आफ्टर दैट दिस पेशेंट कीप्स कमिंग मी विद पीरियडिकल सिम्टम लाइक कभी एसिडिटी सिवियर हो जाता है, बर्निंग, कभी वॉमिटिंग हो जाता है और कभी सिवियर डायरिया. ही हैज टू वेयर डाइपर्स. तो मुझे आपसे यही पूछना था कि शैल आई चेक हिम फॉर सीलियक डिजीज, यू नो. हाँ, किसी की भी जिसकी पेट की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, पक्का उसका टेस्ट करवाओ. जिसकी ठीक अच्छा. नहीं हो रही, जिसके पेट Okay. में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और लोगों के सालों के साल चलता रहता है. किसी को लूज मोशन लगते हैं, किसी के पेट दर्द होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है. जिसको भी लंबे समय के लिए ये सब कुछ होता है वो उनका व्हीट एलर्जी टेस्ट, टीटीजी टेस्ट जरूर करवाना चाहिए. डेफिनेटली. Okay, ma'am. Thanks. Yes, Dr. Vaishali, I did, check for IBS, but he doesn't have it. We did all the stool routine हाँ, check. फिर कोई बात नहीं, फिर आप अपने Endoscopy दूसरे भी तरीके से करवाया. आप उनको देखिए. नहीं है व्हीट एलर्जी तो कोई बात नहीं, Okay. Yeah. Thank you so much, ma'am. लेकिन कंफर्म करना चाहिए कि है कि नहीं है. अगर है तो फिर व्हीट छुड़वाना पड़ेगा. Okay, ma'am. Okay. Thank you so much, ma'am. So I think Any further time questions? काफी हो गया. अब हम Yes, we Wind had up a करें? wonderful discussion. Thank you, Dr. Neelam. It was very enlightening, and we really got to learn a lot from your cases. Thank you. I'm sure you're going to keep on posting your cases and your videos in our WhatsApp group, and we are going to keep on learning from you. You are one of our very senior doctors, and we are lucky to have you in the group. Thank you. Please keep on sharing more and Yeah, more things, definitely. and keep on guiding us whenever we need the guidance. आजकल मेरा 100 days 100 केसेस चल रहा है, उसमें 84 केसेस हो गए हैं और मुझे पता भी नहीं चला कि कब 84 केसेस हो गए हैं. एंड That's really या और बहुत ज्यादा डॉक्टर्स अप्रिशिएट करते हैं कि ये सीरीज मेरी बड़ी सक्सेसफुल चल रही है. आप लोग भी जो यूट्यूब पे मेरा नाम लिखिए डॉक्टर नीलम अवतार सिंह और उसमें आप ये ढूंढ सकते हैं. And hats off to the zeal that you have. It is, we can make it out from your face. Yes, you are a homeopath who needs to be our ideal. Yes, you're still very young, and Thank you. certainly all of us need to have that motivation to continue to keep learning and Yeah, improvise definitely. our practice, and at the same time have that zeal, even if we are aged, that no, we are going to keep on treating with all the fervor, with all the enthusiasm, and maybe in this group there will be many more in the future who are going to share their cases and say that yes, we have learned something from Dr. Neelam Avtar Singh also. So thank you very much for being with us. Thank you the participants for being a kind listener, an enthusiastic listener. Yes. So meet Thank you you, all tomorrow. Dr. Alka. We cannot conclude a webinar without thanking you also because she has been consistently present. Thank you, Dr. Neelam. Thank you very much. Thank you. Thank you. Welcome everybody. I have one question, ma'am. Yes, I think we have one question, ma'am. Can you wait Okay, yeah, definitely. Yes. Ma'am, hyperhidrosis case curable है क्या?
hyperhidrosis. Hyperhidrosis. जिनके हाथों में पसीना बहुत आता है, हाँ, yes. ये केसेस बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट है और बहुत टाइम लगता है. मुझे लगता है कि साल इनकी दवाइयां ढूंढने में लग जाता है. वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. बड़ी मुश्किल से मैंने अगर 10 मरीजों को दवाई दी होगी तो एक आधा ही ठीक हुआ होगा. सो टू बी वेरी ट्रू, ये सच्चाई है मेरे लिए. या Yes, so should we conclude? Is there any further question from the audience? Okay, so thank you so much. I wish to meet you all again tomorrow. Yes, we have few more series or lectures remaining. Yes, so thank you very much, Dr. Needham, once again. Thank you. Thank you, audience, for Thank you everyone for the webinar. Thank you. Good night. Thank you. Meet you all again tomorrow. Bye-bye.